हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर फर्स्टली ये एक्सप्लेन किया था हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन may be classified into two categories, that is first monohydrogen and second di or polyhydrogen. Monohydrogen compound means it contains one hydrogen atom in their structure, for example ethyl halide and haloarine or chlorobenzene etc. But in case of di or polyhydrogen compound, it contains two or more hydrogen atoms in their structure. Very important example: 1 to dihydroethyl and 1 to 3 trihydropropane, and now here 1 to 3 trihydrobenzene and etc. But on the basis of classification, monohydrogen compounds again classified on the basis of hybridization of carbon. It has two categories, या जिसको आप कह सकते हैं कि मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड को दो बेस पर क्लासिफाई किया गया है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, compound containing sp3 carbon bonded X bond, and now B point, compound containing sp2 carbon bonded X bond. Compound containing sp3 carbon bonded X bond, it may be includes in three types, or we can say it is of following three types, and that is first alkyl halide, and second is now allyl halide, and now third is benzyl halide. What do you mean by alkyl halide? We know that R is the alkyl group. It directly binds with hydrogen atom. Now this is the alkyl halide, or we can say when the hydrogen atom directly binds with alkyl group, then alkyl halide is obtained. मेरे कहने का मीनिंग है कि जब हाइड्रोजन एटम alkyl ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो alkyl halide कंपाउंड ऑब्टेन होगा। We know that the general formula of alkyl halide is CnH2n plus 1 into X. Now alkyl halide again divided into three parts, that is first primary alkyl halide, and second secondary alkyl halide, and third tertiary alkyl halide. This is the primary carbon atom, and primary carbon atom because this carbon atom attached with one alkyl group. Primary carbon atom directly binds with hydrogen atom. Now this is the primary alkyl halide, or we can say this is the primary haloalkane. क्या डिफिनेशन निकल के आया? डिफिनेशन ये आपको क्लियर आया, when the hydrogen atom binds with primary carbon atom is known as primary alkyl halide. But in case of secondary alkyl halide, now this is the secondary carbon atom. Why it is called as secondary of carbon atom? इस कार्बन एटम को सेकेंडरी कार्बन एटम आप क्यों कहते हैं? Now this carbon atom consists of two alkyl groups, and
सेकेंडरी कॉर्बन एटम बाइंड्स विद हाइड्रोजन एटम, या जिसको आप कह सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कॉर्बन एटम से अटैच होगा, तब उसको हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोएल्केन, और वी कैन से व्हेन द हाइड्रोजन एटम directly binds with secondary carbon atom, then secondary alkyl compound is obtained. And just like now, this is the tertiary carbon. What do you mean by tertiary carbon? Means what? This carbon consists of three alkyl group, or we can say the three alkyl group attached with this carbon atom. आप देख लें, ये जो आपका कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से तीन एल्किल ग्रुप जो है अटैच है ड्यू टू दिस रीजन टर्शियरी कार्बन एटम. नाउ टर्शियरी कार्बन एटम डायरेक्टली बाइंड विद हाइड्रोजन, और वी कैन से व्हेन द हाइड्रोजन एटम बाइंड्स विद टर्शियरी कार्बन एटम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी एल्किल हैलाइड, और वी कैन से टर्शियरी हाइड्रोएल्केन. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो हाइड्रोएल्केन्स हाइड्रोएरीन्स है, इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट पॉइंट मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड एंड सेकंड पॉइंट डाई और पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड. मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड मींस उसके स्ट्रक्चर में आपको वन हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा. डाई और पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड में आप देखेंगे कि टू और मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर. नाउ जो मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड है वो अगेन क्लासिफाई हुआ है, वो भी आपके ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम. मींस मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड में जो कार्बन एटम है उस पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्डेड X बॉन्ड, एंड अगेन कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्डेड X बॉन्ड. मींस कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्डेड X बॉन्ड, it includes in following type, that is first alkyl halide, and second allylic halide, and third benzylic halide. Alkyl halide means when the hydrogen atom directly binds with alkyl group is known as alkyl halide. मेरे कहने का सेंस है, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली alkyl ग्रुप से अटैच होगा तो आपको उस कंपाउंड को आप alkyl halide कहेंगे. और alkyl halide का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 × 1. Alkyl halide again divided to three parts, that is first primary alkyl halide, and secondary alkyl halide, and third tertiary alkyl halide. प्राइमरी alkyl halide में आपको देखिए ये प्राइमरी alkyl halide है, मींस हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच्ड है. इन केस ऑफ सेकेंडरी alkyl halide, हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है. इन केस ऑफ टर्शियरी alkyl halide, हाइड्रोजन एटम टर्शियरी कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है. एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम? व्हेन कार्बन एटम अटैच्ड विद सिंगल alkyl ग्रुप, जब कार्बन एटम सिंगल alkyl ग्रुप से अटैच होगा, नाउ प्राइमरी कार्बन एटम. जब कार्बन एटम टू alkyl ग्रुप से अटैच होगा, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एटम. जब कार्बन एटम थ्री alkyl ग्रुप से अटैच होगा, दिस इज द टर्शियरी कार्बन एटम. तो आपको मैंने मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ये मैंने बताया कि मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी कंपाउंड कंटेनिंग sp3
carbon bonded halogen bond, and second category compound containing sp2 carbon bonded halogen atom. Now in the first category, compound containing sp3 carbon bonded halogen bond means what? First heading is alkyl halide, but now second heading allyl halide, very fine compound allyl halide. In case of allyl halide means now here allylic group, allylic halide, or we can say A double L Y L I C, allylic halide. We know that CH2 double bond CH single bond CH3. This is the alkene type of organic compound, and the IUPAC name of this compound is propene 1. Here general name of this compound is propylene. Here it loses one hydrogen atom. This group is also known as allyl group. Generally it is represented by following irregular structure. Now here this is the allyl group. Here bind with halogen atom. This carbon is called allylic carbon. या आप कह सकते हो कि जब प्रोपीन में जो मेथिल ग्रुप है वहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो आपको एलिक ग्रुप ऑब्टेन होगा, और ये जो आपका CH2 है, ये जो कार्बन है, ये आपका एलिक कार्बन है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम एलिक कार्बन से अटैच होगा, जब हाइड्रोजन एटम एलिक कार्बन एटम से अटैच होगा, ना उसको हम लोग एलिक हैलाइड कहेंगे, या आप कह सकते हैं कि एलिक हैलाइड कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम एलिक कार्बन एटम से अटैच होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इरेगुलर वे में नाउ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ monovalent compound containing sp3 carbon bonded hydrogen bond means what? This is the benzene or aromatic compound. Here attached with CH2. This is the benzyl group or third type of benzylic halide. This group is benzyl group, and this carbon is also called as benzyl carbon. Here tightly attached with halogen. This is also called as benzylic halide, or we can say when the halogen atom attached with benzylic carbon atom is called benzylic halide. मेरे कहने का मीनिंग है कि ये आपका जो C6H5CH2 ग्रुप है, C6H5CH2, इसको हम लोग बेंजिल ग्रुप कहते हैं, और इस कार्बन को बेंजिल कार्बन एटम कहते हैं। जब हाइड्रोजन एटम इस बेंजिल कार्बन एटम से अटैच हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में बेंजीलिक हैलाइड कंपाउंड ऑब्टेन होगा। इसका मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड है, मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, या दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वेरी फर्स्ट मोनो हाइड्रोजन
compound containing sp3 carbon bonded halogen bond and next monovalent compound containing sp2 carbon bonded halogen bond। तो आपको जो फर्स्ट आपका है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको देखने को मिला कि इसमें आपका जो मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। यानी फर्स्ट एल्किल हैलाइड और सेकंड आपका एल्डिक हैलाइड और थर्ड आपका बेंजीलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड में आपको देखने को मिला कि द हाइड्रोजन एटम जो है वो एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली बाइंड हो रहा है या डायरेक्टली अटैच हो रहा है और एल्डिक हैलाइड में आपको देखने को मिला कि जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका एल्डिक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो रहा है और बेंजीलिक हैलाइड में आपको देखने को मिला कि जो हाइड्रोजन एटम है वो बेंजीलिक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसी क्रम में जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है जिसको आपने कहा कि मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड को हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम के बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो पहला कैटेगरी तो कंप्लीट हो गया कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन दूसरा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। इस बेस पर जो मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी फर्स्ट विनाइलिक हैलाइड एंड सेकंड एरिक हैलाइड। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स।